Good morning, viewers from the Pioneer Talk. We wish all of you a very happy new year, a very safe and peaceful new year. And I'm Dr. Jaskiran Chopra, and my colleague with me here today is Paritosh Kimoti. And we welcome our very special guest for the new year. And he is the well known film and TV actor Kamaljeet Singh Ji, who is very special for us here at the Pioneer Dehradun because he has studied at St. George's, Missouri, Tell and them has later. a close Hi, connection good with the morning, reason, everyone. with the A very region. happy new year. Welcome to you, Kamaljeet Singh Ji, and we thank you for taking out time in the new year to join our listeners and viewers at the Pioneer. My And pleasure. we know that you're a true blue Manorite, and we are really proud and happy to have you here this wonderful winter morning, which is very cloudy today and it was raining, but now suddenly it is a little sunny. So we are enjoying ourselves, and we wish you a very happy new year at the outset. And we would like to, Send I send mean, some of your weather here. yeah, so यहाँ that गर्मी you हो रही, can be a bit बहुत गर्मी। nostalgic and remember your Missouri days because it snowed here, I think, near That's Missouri. right. Yes, I was in Chandigarh shooting, Yes. so at that time it came down to 4, so Oh, that was yes, good, yes. really nice. So we would like a bit of your weather here. So we would like सबको to start. हर किसी को जहाँ में सब मुकम्मल कुछ नहीं जहाँ मिलता। नहीं मिल, हाँ, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ मुकम्मल नहीं मिलता। नहीं ये वो तो हम सब जानते हैं, बट कोशिश रहती है कि कभी कभी मुकम्मल भी मिले कुछ. that is because of the greed of the man. Yes, 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 वरना true. जितना है उसमें Because खुश रहना चाहिए। Haji. So we would like to start with your Masuri days because we are sitting here in Dehradun, and we know that your connection with the school, your alma mater, is very strong and deep, and you come almost every year whenever there is a reunion, and you interact with all your batchmates. So, would you like to just tell us something about your school days? I don't know. Like you said, yes, I don't miss a chance to go to Missouri. It's a very dear part of my past. I've learned a lot there, although I wasn't there for a long time, but it it left a very deep impression on my mind. And वो जो mold and it molded me. Those few years really molded me, and that's how well I've reached wherever I am. But there were other factors also. But Mussoorie St. George's has been one of the very it has played a very major part in my growth. And because we were in Saharanpur and we lived in Saharanpur, Yes. so Mussoorie was close. So वहाँ पे मैं पढ़ता था एक स्कूल में सोफिया में. तो वो खत्म हुआ जब चौथी पांचवी में. तो डैड सेड वुड यू लाइक टू गो. तो आई सेड आईड लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल. तो कहने लगे मेरी बुआ उनकी बहन वॉज इन शिमला. कहने लगे यार तू बिशप कॉटन चला जा. मैंने कहा मैं बिशप कॉटन जाऊंगा, वहां मेरी बुआ होगी, तो मेरी आजादी का क्या होगा. तो आई ऑप्टेड फॉर मसूरी. मैंने कहा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई Hmm. कहने वाला नहीं, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त, क्यों कर रहे हो. तो मैंने कहा मैं यहाँ खुश हूँ. तो यहाँ और लाइक यू सेड हमारा जो एल्बम आर्ट है ये मतलब अलुमनाई जो ग्रुप है हमारा, Hmm. वी आर स्टिल टुगेदर, बैच ऑफ 68. वी वेरी strongly knitted together. Hmm. So you're in touch with all your most of Absolutely, your absolutely, batchmates. absolutely. And well, my classmates uh, turned out to be generals and Hmm.
commanders in the Navy. One of my friends, Budi Rawat, was the last commander on Vikrant before it was decommissioned. Okay, Now okay. he's retired. And then Oh, there's Ashok Sharon, General, and then there's General Dalbir Singh. All these guys were, we were together, and they've done us real proud. yes. And they retired as generals, and we're very proud of them. There are many other people who are great businessmen, Hmm. technical job, government job. They're all well placed. मैं ही एक एक्टर बन गया. You are the best placed. You'd like to ask Yeah. something? Okay. आपने एक चीज कहा था, उससे मेरे को स्ट्राइक हुआ. You were talking about human greed, and उससे मैं क्या? कोरिलेट ह्यूमन Sorry. ग्रीड के बारे में. हाँ. हाँ, तो उससे अगर मैं कोरिलेट करूं मसूरी को, आप जब रिसेंटली मसूरी में आए होंगे, कंपेयरिंग दैट टू योर स्टूडेंट डेज, आपको जो चेंजेस मसूरी में दिखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दोस चेंजेस मसूरी और ये में देहरादून मसूरी में? देखिए, एक तो मैं बहुत ही अपसेट हो गया था. हमारा वहां पे एक दोस्त है विंकी, उसका गेस्ट हाउस है मॉल पे. अब वहां पे मैं मेरी किस्मत खराब थी, मैं वहां कुछ मुझे काम पड़ा, तो मैं वहां पहुंच गया ड्यूरिंग सीजन. एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि मॉल से गाड़ियां गुजर रही हैं और हॉर्न हॉकिंग हो रही है, और इतना वो, मैं तो परेशान हो गया. मैंने तब से कसम खाई है, मैं सीजन में तो बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं. और ये फर्क तो बहुत है, मुझे महसूस हुआ, और मुझे बहुत बुरा भी लगा. हमारे यहाँ भी लोनावाला में इतनी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है जहाँ मैं रहता हूँ. लेक सामने जो है वो ड्राई हो जाती है during, because all the water bodies are because of the monsoons. अब जब मानसून नहीं होते तो ये ड्राई हो जाते हैं. तो यहाँ पे लोग गाड़ियां सीखते हैं, कार सीखते हैं, पार्टीज करते हैं, और जो पार्टीज करते हैं वो प्लास्टिक सब वहां पड़ा रहता है. आई डोंट नो, somebody has to educate them, you know. ये बड़ा बुरा लगता है. तो ऐसा ही मसूरी में हो रहा है, ऐसा ही सब जगह हो रहा है. in spite of the fact, despite the fact कि they have suffered corona times, they have not learned a lesson, which is really sad. आपने कोविड का बोला जी. तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस, वाज कोविड लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू? आपका क्या कंक्लूजन है कोविड का एक्सपीरियंस से? भाई हम तो पहले ही परेशान थे पोल्यूशन से, बॉम्बे में रहते हैं. तो दिल्ली में जाते थे, वहां मास्क पहन के घूमते थे कोविड से पहले भी. आप बाहर जाएंगे तो यू हैव टू हैव अ मास्क, अदरवाइज. और दूसरी बात ये है कि ये तो कोविड मुझे लगता है सिखाने भेजा है हम लोग को कि हम कदर करें नेचर की. भाई जब नेचर था इतना प्रिस्टीन, इतना सबलाइम, सब कुछ, और उसको आप खराब कर रहे हैं because of the greed of the man. It's really shocking that even such a huge shock could not wake up people. They're again going back into the same rut. And few people, of course, some people would learn the lessons and remember them, but not everybody. वो ऐसा है, only those people who were infected by it will learn. यहाँ पे जब वो आया था भूचाल भुज में, तो हम यहाँ बड़ा कंप्लेसेंटली बैठे थे लोग कि अरे भाई, if there is a war in anywhere in the world, it affects your kitchen. Yes. It affects your health. You have to know and understand all that. That's true. नहीं, हाँ, जब तक अपने किचन में आटा नहीं होगा ना, तब तक इनको अकल नहीं They will not realize it. That's true, and I really do hope that it makes a difference somewhere, because people have sacrificed so many things, the doctors, the nurses, so it should teach somebody something at least. So I know that your lockdown experiences were very humorous, some of them, and we've been watching those ones about. I was trying to amuse myself.
तो उसमें Yes. पता लगा कि लोग भी इन्वॉल्व हो गए और Yes. मुझे सजेशन आने लगी कि भाई हम ना ही भेजें या इधर आ जाइए, इधर ना ही की I दुकान know. खुलती That है। was तो actually very nice. People really enjoyed. So you would also now move on to your next alma mater in Pune. And I would like you to share with us those wonderful years, something of those wonderful years, because you have worked with people like Kamal Amrohi right in the beginning, and others also, the lyricists, the Urdu poets who were part of the industry at that time. So you had a close association with all those, the great veterans. So I would like you to tell us about them, because Shankar Hussain, I know it took a long time in the making, but what was your experience with Amrohi Sahab? अमरोही साहब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। वन कुड लिसन टू हिम द होल डे। हम लोग पल पल के, और उनको बोलने का भी शौक था। Hmm. हमें सुनने का शौक था। तो कभी कभी तो ऐसा होता था, एक किस्सा शुरू होता था सुबह और लंच टाइम हो जाता था, पता ही नहीं लगता था, कोई शॉट ही नहीं होता था। ये भी ऐसा भी हुआ है। बट ऑफ कोर्स हिज राइटिंग एंड हिज वे ऑफ वर्किंग वाज फैंटास्टिक। आई मीन यू नो, ही वाज a perfectionist. He wouldn't Yes, be satisfied anything below that. और that's उसमें true. क्या हुआ कि मुझे ये फिल्म मिली कैसे। Hmm. मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो हम लोग वहाँ मेन थिएटर में हम लोग ईटिंग सिनेमा, ड्रीमिंग सिनेमा, ड्रिंकिंग सिनेमा, तो हम लोग सिनेमा देखते रहते थे। तो वी वर यंग गाइस, तो कमेंट भी मारते थे। तो वो एक दिन इनकी बिटिया आई हुई थी, और बिटिया को बिटिया ही बोलते थे सब। वो कमाल साहब थी और उनके बेटे सब थे। लोग। हाँ, वो बिटिया बोलते, हम भी बिटिया ही बोलने लगे। तो तो वो बैठी हुई थी मेरे पीछे। आई डिडंट नो शी हैड कम टू मीट समबडी Hmm. इन द इंस्टीट्यूट, वन ऑफ हर फ्रेंड्स। तो उसने देखा ये लड़का जो है, ये बहुत है, मतलब बहुत जोक्स कर रहा है, बहुत ये है, पीपल विद हिम आर एंजॉयिंग इट, और बड़ा मजे ले रहा है। Hmm. तो शी वेंट बैक एंड टोल्ड कमाल साहब के दैट देयर इज वन हुसैन देयर। ये शंकर हुसैन बना रहे थे। हुसैन का कैरेक्टर जो था वो ऐसा ही था जैसा मैं उस दिन बिहेव कर रहा था, या अक्सर किया करता हूँ, बड़ा जोवियल और फुल ऑफ लाइफ। तो ऐसा फिर कमाल साहब ने मुझे बुलाया, उन्हें बताया कि भाई हम क्विकी बना रहे हैं, आई एम नॉट डायरेक्टिंग इट, यूसुफ भाई इज डायरेक्टिंग इट, हु वाज हिज असिस्टेंट। Hmm. तो मैंने कहा ठीक है सर। तो कहने लगे क्विकी बना रहे हैं। मैंने कहा, तो उस क्विकी को 3 साल लग गए। वो पहले दिन क्या हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे थे और मैं बैठा था, और तो इनके बेटे आए। मैंने कहा सर कब होगा होगा शुरू। कहने लगे वो कमाल साहब तो लंच के बाद आएंगे, आप आराम कीजिए। तो मैंने कहा, ठीक है भाई। हम तो उस जोश से आए थे कि भाई जाते ही हाँ. शुरू हो जाएंगे, डायलॉग बोलेंगे और काम शुरू करेंगे पहला Hmm. अपना जिंदगी का। तो दोपहर तक, तो दोपहर के बाद कमाल साहब आए, तो सब आदाब आदाब। तो उनको वो सेट देखने गए अंदर, Hmm. उनके पीछे हम सब, और जहाँ देखते थे, वाह यार ये क्या बकवास है। तो ये उनका चल रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो फिर इवेंचुअली कहते हैं ये तोड़वाइए सब, दोबारा बनवाइए, वरना कोई Oh. जरूरत नहीं है फिल्म बनाने की। Hmm. मेरा तो हार्ट अटैक ही हुआ। Yeah. I was young, 21, 22 years old guy, young man. मैंने कहा Yes. मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है यार। तो वो किस्सा हुआ, पर फिर सेट फिर Yeah. लगा। तो इसी वजह से ये वजूहत थी जो जिनकी वजह से इट टुक 3 years, 3 years. For Pakiza, he took 10, I think, 15, 10 years. So 15, 15. Okay. yeah. So that is very strange. I think that's the only one which, and of course, K. Asif also took quite a few years for Mughal Azam. I think that was 9 years or something. So that's why I think this was better of Shankar Hussain. Only 3 years. Yeah. But So it was supposed to be quickie.
mind you. Yes, yes. So, of course, Bunyad is a great milestone. And one of the best things that happened in the lockdown was, the rebroadcast, the retelecast of Bunyad. I don't know why it took so long for them to bring it back. And people really, really enjoyed that during the lockdown. And I'm sure you must have also, your memories would have come back flooding if, Yeah, people used to tell me, but I never watched. you didn't I didn't watch it see. this time. No. Okay. But I would वो like to. जब वो एक्चुअली टेलीकास्ट हो रही थी सब इनिशियली, उस वक्त मेरे पास टेलीविजन ही नहीं था, पेइंग गेस्ट में Okay, रहते in थे. the beginning, in the beginning. So you हाँ. have never watched Bunyad? No, I have in bits and pieces. Yes, I have. Hmm. बट Because क्योंकि that is, किसी दोस्त के घर चले गए तो हाँ, वहां था, और फिर मैं सहारनपुर गया था बीच में hmm, छुट्टियों में, तो मॉम डैड देखते थे तो मैं बैठ जाता था. obviously. तो हाँ, तो But it ऐसे ही is देखा है. truly a classic. It's truly a classic. And Yes. of course, one of the most important roles was your role in that. So I'm sure you consider it quite a milestone in your career. So would you like to say anything about Bunyad and Oh yes, your yes, role? yes, surely. Uh, हुआ ये कि we were already doing a film series for Sippy Films. Sippy, Hmm. Ramesh ji and GP Saab. We were doing a series called Chapte Chapte. Yes. Na? It was a comedy, and is this disturbing you to sound actually? हाँ कुछ आ रहा है है? हिसिंग टाइप अरे वो यार वो खाना बन रहा है ना, अब खाने का टाइम अच्छा बना रही Pressure cooker. तो बोल भी नहीं सकता मैं कुछ. तो खैर, that's the whistle of the cooker. Yes, अच्छा yes. It is disturbing me, so I should have told her in Shiri, but well. तो क्या हुआ कि हमको वो लोग तो हम ही लोगों को जानते थे. पहले ये था कि दिलीप साहब आलोकनाथ का रोल करेंगे और अमिताभ बच्चन सतबीर करेगा, ऐसा ऐसा भी सोचा गया था. लेकिन Yes. जब उनको ये लगा, जब उन्होंने रियलिटी में देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग को लेकर ये पॉसिबल है कि आप एक सीरीज बना सकते. So they settled for us who they knew, from their unit. हम लोग काम कर रहे थे, मैं था, आलोकनाथ था, और भी लोग थे उसमें छपते छपते में, जो कि रमेश जी ने हमको बुलाया और कहा भाई ये सीरीज बना रहे हैं एंड वी वुड लाइक यू टू बी इन इट. हमने कहा श्योर यार. तो रमेश जी ने मुझे कहा कि तुम जो है रोशन लाल का रोल करोगे. मैं बड़ा उदास हो गया, बिकॉज उससे पहले मनोज श्याम जोशी साहब हमको कहानी सुना के ही सुना रहे थे. तो मुझे उस कहानी में जो अपने लिए लगा, वो सतबीर का रोल मैंने कहा मुझे करना चाहिए और मैं करूंगा. तो उन्होंने मुझे कहा रोशन लाल का. तो मैंने कहा सर मैं रोशन लाल का नहीं, मैं सतबीर का करना चाहता हूँ. तो कहने लगे यार तुम उससे, सतबीर इज द यंगेस्ट ब्रदर, तुम उससे बड़े लगोगे, ये वो. उन दिनों आई वाज बिग एंड हैवी. तो मैंने कहा आप मुझे, अभी टाइम था बुनियाद शुरू होने में, तो मैंने कहा गिव मी टाइम, जस्ट गिव मी 20 days. एंड उस 20 दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब ऑलमोस्ट वाटर एंड घास सैलेड, बस कुछ नहीं. And I really worked hard on myself. And on the 20th day or 20, मैं जब ऑफिस गया रमेश जी को मिलने, तो I knocked at the door and he said, "Come in." तो मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने मेरी तरफ देखा और देख के बोला आइए सतबीर जी. So I had transformed myself into that role completely. Wonderful. And what you see in the series is a lot of hard work. Yes, yes. But A lot of hard work in every way. Absolutely. And it is totally, I mean, unforgettable. There has been no other TV series like that, actually. And of course, your later ones also were very important, like Farman and
a Saaz. I'm very fond of Farman. In fact, people ask me which is your favorite. I always बुनियाद, Farman. yes, बुनियाद को क्या है ना, वो एक अलग सी चीज थी. पर अब वैसे मुझे लगता है आई एम वेरी क्लोज टू फरमान. Farman. और फरमान का तो ऐसा हुआ, वी वर इन हैदराबाद एंड इट वाज अ सीरीज व्हिच बिगन एंड एंडेड. इट वाजंट स्ट्रेच्ड. 14 एपिसोड था. Yes, yes, हाँ, that's तो सो इट वाजंट स्ट्रेच्ड. और रफिया आपा हमारी जो ऑथर थी, कमाल का Hmm. नॉवल है उनका, Hmm. जहांपना, उसको किया था अडेप्ट. Yes. Oh, connection. हाँ, You हो asked गया. something, Paritosh, now about the films. हाँ. क्या हुआ? अभी recently in the past few years ये जो है वेब सीरीज लाइव स्ट्रीमिंग हैज पिक्ड अप अ लॉट. तो व्हाट डू यू थिंक इसका कंटेंट पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि एक तो कंटेंट वॉल्यूम में भी बहुत बढ़ गया है, अभी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और क्वालिटी थोड़ा कभी-कभी लगता है क्वेश्चनेबल हो जाता है. सम व्यूअर्स ने के ऐसा ज्यादा हो गया है. आपका क्या व्यू है? पता नहीं, मुझे तो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा टेक्निकली. और फिर क्या है, फ्रीडम बहुत है मेकर को. अब फिर मैंने सुना है कि दिल्ली अब विल कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आल्सो. लेकिन कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा भी उठाया है, बिना बात का सेंसुअस बनाने का, और यू नो ऐसी चीजें व्हिच डोंट गो विद द स्टोरी लाइन, ऐसी बिना बात ठोक दी हैं. तो दैट इज आल्सो नॉट गुड. बट एनी प्लेटफॉर्म इज वेलकम फॉर एन एक्टर. हमको तो काम चाहिए, नौकरी चाहिए सबको, तो ये तो अच्छा है. और लाइक आई सेड, फ्रीडम भी है इसमें, यू नो. There's nobody sitting at on top of you to tell you what to do and what not to do. Yeah. तो आपने भी किया ना अभी हॉस्टेजेस? मैंने 2 किया है. दो. मैंने हाँ, मैंने 2 किए. एक तो was about I forgot the name. वो Is it फिर से? फिर से? है? फिर से? नहीं, फिर से was a film. That was a film. Okay. हाँ, फिर से was a film. वो बच्चों की स्टोरी थी. वो उसमें घोस्ट था, and ऐसा कुछ था. I forgot the name. Hmm. Okay, but hostages you did. Hostages. I did, yes, and I enjoyed doing it because Must have, yes. हाँ, उन्होंने कहा कि भाई I was doing a film for Mr. Advani, and हमारी जो डायरेक्टर थी, बहुत ही स्वीट काशवी, वो उसको डायरेक्ट कर रही थी. एक फिल्म है जो आने वाली है, तो उसमें I was playing a सरदार. So Okay. they said कि भाई हमने आपको सरदार बनाना है. पंजाब बैकग्राउंड पे थी, हिंदी फिल्म है. तो मैंने कहा मैं दाढ़ी लगा नहीं सकता, मैं दाढ़ी अपनी रख लूंगा. तो उसी बीच में मुझे हॉस्टेजेस मिला. वो कहने लगे यू आर अ पुलिस ऑफिसर इन दिस थिंग एंड बॉस हैं आप रोनित के. तो मैंने कहा ये अब तो मैं दाढ़ी के साथ ही आऊंगा. तो उसमें कंटिन्यूटी में दाढ़ी बची हुई थी. तो आई कांट शेव ऑफ. तो कहने लगे हम भी आपको सरदार बना देते हैं. तो यूं हुआ. You must have played a Sardar Sikh in some of the Punjabi films which you did, or you did not? I did play, and I was always reluctant of putting gum and knuckly beard. I'm okay with my own beard, you know, and then I tie a turban. That's all right. That's fine with me. Yes. Because my skin is allergic to the gum that they put Okay. to stick the beard. Hmm. So इसलिए I generally don't do. If I have now, अभी मैं करके आया हूँ, पंजाबी फिल्म भी करके आया हूँ. So with my own beard, that is very nice. Otherwise वो अजीब सा. Yes, that is very awkward. That is awkward. So, which one is your favorite role? I mean, among the films that you have done? ना फिल्म में फेवरेट तो नहीं. हम हर बच्चा माँ बाप का फेवरेट ही होता है. बट यस, मुझे शर्त करने में बड़ा मजा आया. नसीर एंड शबाना. Yes, yes. हाँ, और फिर सत्ते व सत्ता तो वी हैड अ बॉल इन कश्मीर. तो इनफैक्ट वहाँ होटल वाले कहने लगे भाई कब जाएंगे ये लोग बॉम्बे वापस. Satya was a riot. हाँ, it was right.
Right. Yes. वो and, So, of course, your other roles, like in Razi, Marches, हाँ, they have a great eminence also. And you are a byword for natural acting in the industry. And of course, as we have all seen, that you are in the tradition of Balraj Sahni ji and Sanjeev Kumar ji. And so, have they been any, part of the influence that you have had? ये uh, अच्छा लग रहा था, आप इतनी तारीफ कर रही थी, बंद हो गए आप। बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं हम आपकी, बिकॉज वी डोंट हैव नेचुरल एक्टर्स, many many natural actors. मैंने अभी रिसेंटली एक प्ले किया। प्ले से मैं घबराता हूँ, आई हैव साइकोलॉजिकल फियर ऑफ प्ले। तो मुझे रमेश तलवार हैं, वो किया करते थे प्ले आखिरी क्षमा। आखिरी क्षमा कैफी आजमी. कैफी साहब का है और इट्स अबाउट गालिब, It's about है ना? Ghalib. Yes. या और वो सबसे पहले किसने किया था? बलराज बलराज साहनी. साहनी। बलराज अब साहनी. ये मेरे पास आए, कहने लगे आप 50 साल हो गए इसको और हमको गालिब नहीं मिल रहा, तुम करो। इनको मालूम है मेरा पोइट्री का शौक है। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? अरे मुझे घबराता हूँ यार, मेरे को सपने आते हैं, ये नाइटमेयर कि मैं ऑडियंस के सामने हूँ, डायलॉग भूल गया, तो मैं तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि अब कैफी साहब का है, तो इन्होंने मेरी शिकायत शबाना से कर दी कि वो कर नहीं रहा। तो शबाना इज माय क्लासमेट। तो मैं आई कॉल्ड और शी कॉल्ड हर मी एंड सेड तुम क्यों इतना डरपोक क्यों हो तुम? Try it. And he said, and she told me that it's purely an actor's medium. फिल्म में तो यह डायरेक्टर वहां बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बता रहा है, ये कर रहा है, but once you're on stage, you're your Yes. own Master. director or master, है ना? And I realized that कि तो मैंने घबरा के हाँ कर दी और फिर उसके बाद I tasted blood. So now you are still doing it, or the shows are over? I'm doing, but we फिर lockdown आ गया। Lockdown. But would you like to do other plays? Would you like to do other plays? Yeah, but they should interest me, immensely, and they should be good, sensible plays. Yes. Because this is your, very close to your heart, Ghalib, because you've been associated with Ghalib since your school days. And you must have really loved doing Ghalib after once you got over the stage, right? No, I never got over the fear. मैं अकेला बैठा रहता था और there were other actor friends in the play who have been doing it, all along. Like Ragesh Bedi था वहाँ, उसमें ये सब थे, तो they used to watch me with the script, the tense और कितनी देर रखी यार, कितनी देर रखी, अच्छा कब मेरा आने वाला है, प्लीज यार, ऐसा घबराया होता था। They used to laugh at me. तो फिर मैं रिलैक्स हो गया था। So we had done about 6-7 shows, and now we were supposed to do it NCPA, और वो उसके पहले Lockdown हो गया. But it's really wonderful that you have covered films and, even Punjabi films, then the TV series and the web series and now theater. So, the मैंने complete बंगाली फिल्म भी की हैं 3। Bengali? हाँ। Bengali films. So you know the language? No, I don't know the language. क्या हुआ, चंद्र बारोट जिन्होंने डॉन बनाई थी, वो फिल्म कर रहे थे कलकत्ता में मीठू मुखर्जी के साथ। Okay. तो उनका कुछ झगड़ा हो गया जो हीरो था उससे। तो ये चंद्र बारोट मुझे जानते थे, मुझे जावेद साहब के यहाँ बहुत मिलते थे, तो मुझे फोन आया, तो करेगा बंगाली? मैंने कहा मैं बंगाली जानता ही नहीं भाई। I may be married to Bengali family, Yes. partly because Minnie's Yes. Muni's grandfather, Yes. grandchild. तो मैंने कहा मुझे और मेरा बंगाली से कोई वास्ता नहीं। I love Tagore, translated in English. हाँ, तो बस यही कहने लगे, नहीं तुम ऐसा करो, हम तुमको 3 महीने देते। So they sent the script and they sent a man. यहाँ पे हायर किया टीचर एक मेरे। 3 महीने में सीखा डायलॉग, और डायलॉग में सीख गया बहुत अच्छी तरह, लेकिन वो जो एक्सेंट है ना, वो नहीं आया। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं बोल दूंगा, करेक्ट बोल दूंगा,
लेकिन you will have to have it dubbed by a Hmm. Bengali. So, and that film, after a long time, that was a successful film. 7 साल Okay. उनका वहाँ पे रहा, बहुत बुरा टाइम सिनेमा का, मुझे कहते थे वो लोग। और 7 साल के बाद ये जब आश्रिता आई, ये फिल्म का नाम था आश्रिता, Hmm. तो ये बहुत चली। Oh, that's उनके बाद wonderful. I didn't know about the Bengali cinema that you have done. वहाँ And को इतना रियलिस्टिक मामला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि hmm. यार देखो आम जिंदगी कैसी होती है। फिर रियलाइज किया हम जीते हैं तो पता नहीं लगता, जब Yes, हम yes, करते हैं yes, तो फिर पता लगता है। yes, that's true. They are very realistic, absolutely. The Bengali films, yes. Paritosh, would you like to carry on? परितोष कहिए सर। सर मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ, एक आप ज्यादा अलग रहते हैं ऐसे कंट्रोवर्सी से, बट अभी रिसेंटली एक क्या होता है, एक्टर्स हम जनरली सोचते हैं कि दे एक्सप्रेस थ्रू द मीडियम दे हैव, थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया, पहले भी स्टैंड्स लेते थे, इमरजेंसी के टाइम भी स्टैंड लिया था एक्टर्स ने, या सिनेमा में, या सिनेमा के अलग अलग पार्ट्स। आजकल कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो गए कुछ, यानी अलग अलग इश्यूज पे। डू यू थिंक इट इज गुड और बैड? यानी पॉलिटिक्स पे बहुत अपना ओपिनियन देते हैं, एजिटेशंस पे बहुत ओपिनियन देते हैं। डू यू थिंक इट्स गुड और बैड, और शुड द एक्टर्स रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू सिनेमा एक्टिंग? रिबाउंड कर रही है आपकी आवाज, पता नहीं। अच्छा, ये मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन, मतलब हाँ हाँ पता नहीं ऐसी I really don't know how to answer this because मैं तो I am just an observer. अब during this poor boy's time, ये जो सुशांत है, इसके वक्त मुझे लोग ओपिनियंस दे रहे थे, ये दे रहे थे, वो दे रहे थे, और मुझे कहते तुम बोलता क्यों नहीं। मैंने कहा हर रोज एक नया फैक्ट निकलता है, अब हम उसके बारे में बोलूं, फिर पता लगे वो कुछ और हो गया, उसके बारे में बोलूं। भाई जब सब कुछ हो जाएगा तो हम देखेंगे क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। या मुझे अगर बोलने की आजादी है तो नहीं बोलने की भी तो आजादी है That's ना। true. तो हाँ, तो ये इसलिए मैं खामोश नहीं, आई फील इट बट आई डोंट Express. एक्सप्रेस इट ओपनली। That's true. And what we would मुझे like कहा जा to. रहा, अभी मुझे कहा जा रहा है किसानों के बारे में क्यों नहीं बोलते। Hmm. I feel it. I am in touch with certain people who are involved, and we do talk about it. But I don't want to talk about it publicly. That's my choice. है ना? But we would like you to say, I mean, recite something, some favorite couplet from Ghalib or Faiz to conclude. You know, you'd like you to express yourself through Urdu poetry. Oh, Yes, you have to. अभी एकदम आप पूछ रहे थे, मेरे पास किताब भी नहीं, कोई भी नहीं है, मुझे याद क्या है, कपलेट याद है गालिब का। Ghalib. हाँ, मुझे भी ये शेर बड़ा अच्छा लगता है। ये शेर इसलिए भी अच्छा है कि वो गालिब जो थे वो सड़क पे वहाँ पे बैठे हुए थे किसी दुकान पे, वहाँ से उनकी सवारी गुजरती है ज़ौक़ की, तो ये ताना कसते हैं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो ये शिकायत करते हैं ज़फ़र को जाके कि मुझ पे ताने कस रहा है। तो मुशायरा अरेंज होता है, तो बहादुर शाह ज़फ़र इनसे कहते हैं कि भाई ये आपने ताना कसा, तो कहने लगे नहीं जी ये तो मिसरा है मेरी पहले गजल का, वो मैंने कहा, इन्होंने दूसरा मिसरा सुना ही नहीं। तो कहने लगे सही है। तो उन्होंने वहीं फिल्बदी वो बोला कि हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो उन्होंने उसका हुलिया ही बदल दिया शेर का। चेंज और हो गया इसी में पूरा। आगे, हाँ, और इसी में आगे जाके एक शेर है जो मेरा मुझे बहुत पसंद है, वो है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो तो फिर लहू लहू क्या क्या है, है। लहू। और इस शेर पे ज़ौक़ भी बेसाख्ता मजबूर हो गए दाद देने की। बिल्कुल, although he was his rival, but और शिकायत लेके बैठे हुए थे, रूठ के बैठे हुए थे दरबार में।
He couldn't stop himself from praising बहुत this. खूब, बहुत खूब. So I would like to now thank you and Lovely talking wish to you you. all the best. And we're really happy to have had you in. देहरादून में मिलते हैं. हाँ जरूर, बहुत हाँ. जल्द हम लोग सब मिलेंगे मसूरी में, देहरादून में, जहाँ भी. Perfect. हाँ. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. See you. Bye. Bye. Nice. Bye. Bye.